Mines Act 1952. In this video lecture, we shall be discussing about the salient provisions given under the Mines Act 1952. As you know, we need to very quickly have a tour of the legislative framework. Okay, in the legislative framework, as you know, the Mines Act 1952 is one of the important statutes. Now, this is the act of the parliament and it deals with three most important things, and those things are safety, health and welfare of persons employed in the mines. This act is now we shall be studying about the act, rules and regulations for this first class and second class managers certificate of competency examination, because we are expecting a few questions, few MCQs. और आप जानते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं वो माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, ऐसा उसका शीर्षक ही है। तो माइन मैनेजमेंट के साथ तो है ही, लेकिन लेजिस्लेशन ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग इसका होता है। और लेजिस्लेशन हमारे लिए मुख्य रूप से माइंस एक्ट, माइंस रूल्स एंड चूँकि हम धात्विक खानों से जुड़े हैं तो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस 1961। इस वीडियो लेक्चर में हम माइंस एक्ट 1952 पर चर्चा करेंगे। माइंस एक्ट जो होता है उसे लॉ कहा जाता है। कोई भी एक्ट जो होता है उसे लॉ कहते हैं, मतलब एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। इसको अगर हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करें तो एक्ट मूलतः लॉ होता है, पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है। और जो रूल्स होते हैं वो रूल्स में कहते हैं कि जो एक्ट की जो प्रोविज़न है, जो लॉ है, उस लॉ को थोड़ा सा मतलब विस्तारित रूप से रूल्स में समझाया हुआ होता है। और जो रेगुलेशंस होती हैं वो टेक्निकल मैटर से डील करती है। तो अब अगर हम एक्ट और रूल्स को समझने की कोशिश करें तो आप यूँ समझिए कि हमारा जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में दिया हुआ है कि जो भी पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस है, द ओनर एजेंट मैनेजर शैल अरेंज टू सप्लाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर। Okay, so they have said sufficient. Now in the mines rules, which is the rule number 30, which describes about the provisions of drinking water. So in that, therein they have mentioned about the quantity as 2 liters for every person employed in the mine. And there is one provision is also there that where 100 or more persons are employed, the water needs to be mechanically cooled. तो हमने क्या देखा, एक्ट में उन्होंने दिया था पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा हो जाए और रूल्स में उन्होंने क्वांटिटी दे दी। तो इस प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन तकनीकी मैटर में होते हैं। अब अगर हम और एक बात देखें कि नाउ सिंस द माइंस एक्ट was framed in 1952, although the first Mines Act was framed in 1901, but the present Mines Act, which is applicable to us, which we are expected to study, under which our examination is being conducted, so that is 1952. So since this act was enacted in the year 1952 and there could be some changes and all that, so there is a provision for amending the act also. The act can be amended. Now what are the situations when the act can be amended? So there are certain certain circumstances wherein act can be amended. The act can be amended if the government feels it to be amended. Means if the government feels, अगर प्रशासन को लगता है, सरकार को लगता है कि इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए तो एक्ट अमेंड किया जाता है। अगर बदलाव आ जाए परिस्थिति में, जिसे चेंज्ड सर्कमस्टांसेस कहते हैं, एंड द चेंज सर्कमस्टांसेस इफ दे डिमांड दैट द एक्ट बी अमेंडेड, सो इन दैट केस ऑल्सो द एक्ट इज अमेंडेड। हाउ इट इज अमेंडेड? A draft proposal for amendment is prepared by legal, and that is generally prepared by our DGMS, because we know the Director General of Mine Safety, DGMS, is the representative of the central government for all practical purposes for workings of the metalliferous coal mines and oil mines. So generally this DGMS prepares the draft and it is duly vetted, because you know एक कानून मंत्रालय भी होता है, so it is duly vetted by the experts in the law ministry.
Then the procedure goes like that. Once the draft is prepared and it is duly vetted by the law ministry, then it is given wide circulation. तो वाइड सर्कुलेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हम करेंगे ये बहुत सारे लोगों को लागू हो सकती है, जिसमें राज्य सरकारें जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको भी वो प्रावधान लागू हो सकते हैं, उन पर भी उनका प्रभाव पड़ सकता है। लागू तो होंगे ही, लेकिन उन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसको हम वाइड सर्कुलेशन देते हैं। वाइड सर्कुलेशन में किसे किसे इंक्लूड करते हैं? ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। To that committee also this draft is sent. Then all recognized organizations of mine employers as well as employees, means owners organizations, owners associations, those are also circulated this draft, and naturally the employees union जो होती है उन्हें भी, and all other parties connected with the working of the mines and stakeholders. So it could be any particular district authority, if they have more mines in that area, there is a mineral and all that, and if the government feels that they are also stakeholders naturally, because they also have certain benefits from the mines and all that, so they are also circulated. There is no other issues. Even the equipment manufacturing people, they can also view this draft. Then this proposal along with comments, whatever the comments are received, is considered by a select committee of members of parliament. Now whenever it comes to the act, we know that the act is has been passed by the parliament, so amendment also takes place at the parliament level only, and the MPs, member of parliament जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, सिलेक्ट कमेटी, और उस कमेटी उन प्रावधानों को जिसके ऊपर अमेंड करने की सुझाव दिया गया है, तो उसके ऊपर कंसिडर करते हैं उसको, एंड अपने जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो सरकार को वो देते हैं। अब अगर समझ लीजिए हम इसमें ये बात करें कि कई बार ये भी होता है कि एक्ट के अमेंड करने के लिए whenever any disaster takes place, so the government, central government, they institute a court of inquiry, and in that court of inquiry, if the recommendations of the court of inquiry, they suggest that some amendments need to be done in the Mines Act, so in that case also the act may be amended. Or if there are certain changes in the government policy, mostly these changes are related to the foreign direct investment, etc. Now very recently you must have seen that they have increased the percentage of foreign direct investment by the central government. So इस टाइप का कुछ अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी ज़रूरत पड़े तो माइंस एक्ट अमेंड किया जा सकता है। नाउ द रिकमेंडेशंस फॉर एनी अमेंडमेंट्स, जो भी अमेंडमेंट के लिए सुझाव दिया गया है, जो भी प्रावधानों को अमेंड करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो भी सुझाव दिया गया है, तो उसको हम लोग एक बिल के रूप में, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। जब तक वो पूरा कंप्लीट पास नहीं हो जाता तब तक उसे बिल ही कहा जाता है, एंड वो लोकसभा के सामने रखा जाता है, एंड इन दैट लोकसभा इट इज़ डिस्कस्ड और इट इज़ कंसिडर्ड क्लॉज बाय क्लॉज। काफ़ी विस्तृत उसके ऊपर चर्चा होती है, हर प्रावधान के ऊपर चर्चा होती हैं और उसमें विचार विमर्श किया जाता है। when the bill is passed in the Lok Sabha, it is placed before the upper house, that is the राज्य सभा। उसके बाद में वो राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है, एंड ऑन इट्स अप्रूवल, जब राज्यसभा में भी वो पारित हो जाए, अप्रूव हो जाए, तो देन द बिल गोज़ टू द प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जब प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी, तो देन इट बिकम्स ए लॉ। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स व्हाट वी हैव सीन। सो बेसिकली द ड्राफ्ट proposal is prepared by the DGMS, and then it is given to the if it is duly vetted by the law ministry। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो पहले DGMS ने ड्राफ्ट बनाया, फिर लॉ मिनिस्ट्री के लीगल एक्सपर्ट्स ने उसे वेटेड किया, then it was considered by a parliamentary committee of members of parliaments, then it was placed before the Lok Sabha।
after clearance from the Lok Sabha it goes to the Rajya Sabha, after it is approved in the Rajya Sabha then it goes to the President, and after President's assent it becomes a law. So these are the steps in the framing of the act as well as the amendment of the act. Now basically this procedure, as you know, the parliament has several other works also. So ये काम बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सरल काम नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, इसमें काफ़ी समय लगता है। इस वजह से ये कहा गया है कि कोई भी कानून जो हो उस कानून की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या उसकी ज़रूरतें या आदर्श कानून कैसा होना चाहिए, आइडियल लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें दी हुई है। कैसे दी हुई है कि वो बी एनफोर्सेबल, मतलब उसको हम लागू करने योग्य होना चाहिए। ऐसा भी कोई प्रावधान न हम बना लें कि जिसका उल्लंघन होना ही तय है, क्योंकि उसे अमल में लाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो पीपल शुड बी इन ए पोजिशन और इट शुड बी कंफर्टेबली कन्वीनियंटली enforced. The legal authority or the law and order authority, they should not also face difficulty in implementing the provisions. So that is for legislation. So it should be enforceable, मतलब उसे लागू करने योग्य होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि it should be instructive. Enforceable, it should be instructive. Instructive means साफ साफ शब्दों में सूचना उसमें से प्राप्त होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कन्फ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि सुरक्षा की दृष्टि से, उसके सुरक्षा की दृष्टि से इट शुड हैव क्लियर सेफ्टी एम्स, क्योंकि एज यू नो सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर, ऑल द स्टैट्यूट्स दे हैव बीन फ्रेम्ड विद दीज थ्री बेसिक concepts or basic purposes. Those are safety, health and welfare of the persons employed in mines. So those safety aims should be very clearly described in that, and they should have strategic aim. They say they should have strategic aims also, means what we have achieved, that we can gauge ourselves, and it can be means the verified whether the objectives have been fulfilled or not. Then it should be just. उसमें किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के लिए, चाहे वो ओनर रहे, एम्प्लॉयर रहे या वर्कर्स रहे, किसी के तरफ भी आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए उस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, वो प्रावधान किसी के भी लिए अन्यायकारक नहीं होनी चाहिए और उसकी सुविधा के दृष्टि से होनी चाहिए। एंड कुछ चीज़ें बी फ्री ऑफ पोटेंशियल ऑब्सोलेंस, मीन्स उसमें एक्ट में खास करके या कोई भी जो रेगुलेशंस और रूल्स हैं वो कानूनी प्रावधान ऐसे होने चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसके प्रावधानों को लंबे समय तक उसकी अहमियत रहे, हमें बार बार उसके प्रावधानों को डिलीट न करना पड़े। कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ बार बार नहीं करनी पड़नी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ दी आदर्श जो ये होती है कानूनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। अब स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड बड़े जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आया है या आ भी सकता है। कहते हैं इन 1895 the government of India initiated steps to frame legislative measures for safety of workmen, and उसमें उन्होंने जस्ट ऐसे शुरुआत पहल की थी 1895 में, लेकिन जब 1897 में 1897 में पहला एक मेजर डिज़ास्टर हुआ, एंड वो कोलार गोल्डफील्ड्स जो हैं उसमें हुआ था, मेटल माइंस की अगर बात करें तो, जिसमें 52 persons had lost their life, and it was immediately followed by another coal mine disaster which was in a Khost coal mine in Balochistan, which is now in the Pakistan, and 47 persons lost their lives. So what happened? The initiation of the procedure of the law, making a law, it gained momentum, and this disaster hastened the process of formulation, and first Mines Act was enacted in 1901. This act was subsequently superseded by Act of 1923, and which was again replaced by the present Act 1952. So the present Mines Act 1952 came into force on the 1st of July 1952. So you can expect a question also. This is a quite simple question, but let us also go through that. So 1st July 1952 and all that. Then major changes
changes were again incorporated in this act in the year 1959 and 1983. As you know, because if there are changes in some circumstances, then the Mines Act may be further amended. So these type of amendments were done in 1959 and 1983, and this Mines Act, as you know, this applies to all the minerals within the country and including the offshore mines within the limits of territorial waters also. Means oil wells which are there on the offshore, so those also come under the purview of the Mines Act, because you know oil mines regulations are framed under the Mines Act only. Now to go through, to start with Mines Act 1952, it is written, अगर आपने वो किताब देखी होगी DGMS वेबसाइट से डाउनलोड करी होगी, तो उसमें लिखा है एक्ट नंबर 35 of 1952. So now you know that the parliament considers several acts, because parliament deals with all the people who are the citizen of India and all other industries and everything and all that. So it could be possible that this was the act number 35 in the year 1952, this was considered by the parliament, and it was considered on 15th of March 1952, and now the DGMS has circulated on their website, it is the act as modified up to 1983, because they say 1959 and 1983 were the 2 years wherein the major amendments were done. Now you know that regulations and rules are framed under the Mines Act. Now these are the rules and regulations: the Coal Mines Regulation 2017, Metalliferous Mines Regulations 1961, as on date we will say 1961 only, Oil Mines Regulation 2017, the Mines Rules 1955, the Coal Mines or Mines Pitted Bath Rules 1959, the Mines Crash Rules 1966, the Mines Vocational Training Rules 1966, and Mines Rescue Rules 1985. Now we can expect, now why I told you this is because we may expect a very simple question, as simple as that: which of the following statutes is not framed under the Mines Act 1952? कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भी हम तैयारी करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस परीक्षा के लिए हमें काफ़ी थॉरो पढ़ाई करनी चाहिए, एंड during the examination you need to very carefully read the question, because in this example which I have taken, which of the following statutes is not framed under the Mines Act 1952? Coal Mines Pitted Bath Rules 1959, Mineral Concession Rules 60, Mines Rescue Rules 1985, Mines Crash Rules 1966, Mines Vocational Training Rules 1966. So we know that which of the statutes is not framed under the Mines Act. So this is fairly a simple answer. It because Coal Mines Pitted Bath Rules 1959 वो तो रहेंगे क्योंकि माइंस से संबंधित है. मिनरल कंसेशन रूल्स 1960, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं. माइंस रेस्क्यू रूल्स जरूर लगेगा. माइंस क्रैश रूल्स 1966 जरूर लगेगा. माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966 अवश्य लगेगा. हम जानते हैं कि माइंस एक्ट में जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर. जबकि ये मिनरल कंसेशन रूल्स जो है, इसका जो बल होता है, द स्कोप ऑफ दिस इज मिनरल कंसेशन रूल्स इज ऑन कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल. इतनी जो कीमती प्रॉपर्टी है, ये राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट न हो जाए और उसे साइंटिफिकली अच्छी तरीके से अधिक उत्पादन किया जाए, इस प्रकार का ये मिनरल कंसेशन रूल्स होता है. तो इसमें हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि उसमें सुरक्षा की अनदेखी होती है, बट ऐसा नहीं है. पर्यावरण की ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं और संवर्धन, खनिज संवर्धन जिसे कंजर्वेशन कहते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं. तो हम अभी इसके लिए वी कैन say that mineral concession rules 1960 is not framed under the Mines Act. Now this is one more question: which of the following statutes is enacted by the Parliament of our country? Okay, so we have seen that the Mines Act 1952 is enacted by the Parliament, right? So Coal Mines Regulation 2017, Mines Rules 1955, Metalliferous, all these do go to the Parliament for their consideration and final approval. But when we say enacted, किसने एनेक्ट किया? तो वो पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया का आंसर होगा माइंस एक्ट 1952. ऐसे प्रश्न के उत्तर में आपको वेरी क्लियरली ध्यान रखना होगा.
अभी they can ask a question, the Mines Act may be amended. Now this is another example we have taken कि Mines Act को amend हम कब कर सकते हैं. वो बोलते हैं due to changed working environment and work practices. अच्छा, कुछ आपका परिसर का पर्यावरण में बदलाव आ गया हो या हमारी कार्य पद्धति में कोई बदलाव आ गया हो. इफ़ रिकमेंडेड बाय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलती है, अच्छा, देन टू रिमूव एनी फॉल्ट और ओमिशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन. अच्छा, दिस इज वन. आफ्टर ए डिजास्टर, ओके, ऑल ऑफ दीज. अच्छा, सो दे हैव सेड दैट एक्ट मे बी अमेंडेड. एक्ट मे बी अमेंडेड में वो बोल रहे हैं कि क्या हम संशोधन माइंस एक्ट में कर सकते हैं. तो हम देखते हैं ड्यू टू चेंज वर्किंग एनवायरनमेंट, हाँ कर सकते हैं. अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया, हाँ हो सकता है. टू रिमूव एनी फॉल्ट और ओमिशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, यस हो सकता है. आफ्टर ए डिज़ास्टर मे बी अमेंडेड, बट ऐसा हम डिज़ास्टर से उसे डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते. इट वुड बी कोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली. कोई डिज़ास्टर हो गया और तुरंत माइंस एक्ट अमेंड किया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. तो उस वजह से हम आफ्टर ए डिज़ास्टर को इस समय में बाजू रख सकते हैं. ऑल ऑफ दिस में वो नहीं आएगा. तो इस तरह से हमको किसी भी प्रश्न को बड़े अच्छे से विचारपूर्वक उसके ऊपर सोचना होगा. एंड यू हैव सीन द क्वेश्चन, माइंस एक्ट मे बी अमेंडेड. ओके, दे हैव गिवन मे बी, नॉट नेसेसरीली दैट इट विल बी अमेंडेड, but after a disaster I think it should not be the case. Now as we know, in this Mines Act, it is a small book and there are 10 chapters given. The first chapter is preliminary, wherein section 1 to 4 is given. Second chapter is regarding inspectors and certifying surgeons, 5 to 11. Then third one is the committees, which is one of the very important things. Then fourth one is the mining operations and management of mines. Now you must have seen here, although this is related, the chapter 4 is related to mining operations and management of mines, there are only 3 sections, 16, 17, 18, regarding the duties of owner, agent, manager and all that we will be looking through it. And the fifth one is provision as to health and safety. Yes, this is very, very important. And as we discussed, that section 19, it wants that sufficient quantity of water should be provided. And so this way there are the provisions in the Mines Act. It won't specify the quantity and duration and all those things. Those are covered under the mines rules and regulations, etc. Now hours and limitations of employment, those are given because this is one of the important areas where the parliament is concerned about, so that the rights of the workers should be protected. They should not be put into undue troubles, and their health and welfare is the major concern. So the hours and limitations of employment, so there are many provisions from section 28 to section 48. Now in between these sections you will find that how many hours in a week he can work, and whether what should be the age of the person who can be deployed, whether women can be employed. Now although there is amendment as far as the employment of women is concerned, we shall be going through that amendment also. Then leave with wages. So this is also one of the considerations for the welfare of the persons. So it is given from section 49 to section 56. Then framing of regulations, rules and bylaws. These are, as you know, rules, regulations and bylaws, they are framed under the Mines Act. So for the provision for that is given in the section 57 to 62. Penalties and procedures, this is one of the important things, because whenever there is any violation of the Mines Act, so because since rules and regulations have also been framed under the Mines Act only, so a violation of the regulations and rules amounts to the violation of the act. So penalties and procedures, they are given from section 63 to section 81, and miscellaneous chapters are given from section 82 to 88. We shall look into the salient provisions which will be very, very important from our examination point of view. Although I am sure that you must have gone through a single reading of the entire book. Now this is a revision part of thing. Now section wise summary, if we go through this section 1, it describes about the short title, extent and commencement. You know that the short title is the Mines Act 1952. It extends to the whole of India,
never get confused whether it applies to Jammu and Kashmir, whether it applies to Sikkim or not. So all those things have been very clearly written here that it extends to the whole of India and came into force on 1st July 1952. So these things, ये सब चीज़ें, 2-3 चीज़ें मन में अगर रखेंगे तो अगर क्वेश्चन आ गया तो वी शुड बी एबल टू। अब आप जानते हैं कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस जो है ये भी हमारे लिए, पूरी डेफिनेशंस हमने नहीं भी पढ़ी तो कुछ कुछ डेफिनेशंस हमको बहुत अच्छी तरह थॉरोली जानना अत्यंत ज़रूरी है। अब एडल्ट के ऐसे ही दिए हैं उन्होंने कि द इज़ वन हु इज़ प्लस 18 ईयर्स ऑफ एज। इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब एजेंट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एजेंट की डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है। एजेंट के बारे में जो डेफिनेशन दी है, अब ये अब आप बोलेंगे कि ये हमें डेफिनेशन क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों पूछी जाती है हमारी परीक्षाओं में, तो इसकी वजह ये है, आपको ये समझना होगा कि माइंस एक्ट में जो पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर्स दी हुई है, वो पेनल्टी आप या तो ओनर, एजेंट, मैनेजर को कर सकते हैं या पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस को कर सकते हैं। किसी भी तीसरे व्यक्ति को आप नहीं कर सकते। तो जब आपके ऊपर आपको कोई भी ये करना है, पता लगाना है कि ये जो दुर्घटना हुई है या जो भी चीज़ हुई है या उल्लंघन हुआ है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो या तो ओनर है, एजेंट है या मैनेजर है। तो ओनर कौन होता है, एजेंट कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये हम अगर जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कानून के उल्लंघन के लिए हम किसे दोषी मान सकते हैं। तो उस दृष्टि से डेफिनेशन, किसी भी कानून की किताब में आप देखेंगे तो डेफिनेशन वाला चैप्टर पहले रहता ही है एजेंट। एजेंट के बारे में उन्होंने लिखा है वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट, उसकी नियुक्ति की हो अथवा न हो, हु एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। परपर्टिंग टू एक्ट मीन्स ऐसा अभिप्रेत है कि वो मालक ही है, मालक की तरह ही वो आके आदेश दे रहा है और सब चीज़ें देख रहा है, खदान में 2 बार 4 बार आ रहा है। यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी ओनर की माइंस है और उस ओनर का बेटा अगर पहुंच जाता है तो बेटा भी आकर के कुछ सुझाव, सूचनाएं, कुछ चीज़ें ऑर्डर दे सकता है। तो ये न समझिएगा कि वो बेटा बच जाएगा चूँकि ओनर उसके पिताजी हैं, नहीं। या एजेंट की परिभाषा में उसे लिया जाएगा क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैनेजर को जो खदान में कोई भी आदेश दिया जाएगा वो केवल मैनेजर द्वारा दिया जाएगा, ये कानूनी प्रावधान है। मैनेजर के अलावा कोई व्यक्ति देता है तो केवल इमरजेंसी में वो दे सकता है, अन्यथा वो नहीं देगा। लेकिन अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो उसकी इंक्वायरी होगी एंड वो एवरी पर्सन हु इज़ गिविंग सच इंस्ट्रक्शंस ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नाउ सिंस दिस एजेंट की परिभाषा में उन्होंने ये दिया हुआ है कि वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट, हु एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर takes part in the management, control, supervision or direction of the mine or any part thereof. Now as I gave you the example of son of the owner, so you will find that if the son of the owner comes and he gives some direction or takes part in the management, control, supervision or direction of the mine, so he will be considered as agent whether appointed as such or not. Then तो दूसरा ऐसा है कि इसमें एक और प्रावधान है। हम अगर MMR की बात करें, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन, तो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 8A में एक प्रावधान ऐसा है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इट रिक्वायर्स सबमिशन टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ऑफ ए स्टेटमेंट showing name and designation of every person to authorize to act as agent along with his area of responsibility. Because in big mines, you know, there could be certain provisions wherein that person is also required to give some direction, management or control is there. For example, a finance person, if there is a finance person whose approval is to be obtained for purchasing any machinery required for the safety of the mine, so that person comes in the picture, and such persons shall be deemed to be agent, and it can be more than one. ऐसे लोगों की सूची एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन आपको उनका दायरा विस्तृत रूप से देना पड़ेगा।
कि अगर आप इनकी लिस्ट दे रहे हैं, इनको एजेंट करके बता रहे हैं, तो आप किस परिभाषा में बोल रहे हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट, कौन सी माइंस का मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, किसी विशिष्ट विभाग का वो एजेंट की दृष्टि से कार्य करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। तो इस प्रकार की हमें सूची देनी पड़ती है। बड़ी बड़ी माइंस में इस प्रकार की सूची दी जाती है और उनका जिम्मेदारी का दायरा भी उसमें दिखाया जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि अगर इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन रिलेटेड टू एनी प्रोविजंस, देन दैट पर्सन विल आल्सो बी कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज आप उसे बुला नहीं सकते। कमिटी की डेफिनेशन में दे हैव गिवन दैट कमिटी इज एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12, नेचुरली सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट। अनदर इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कमिटी किस सेक्शन के अंतर्गत, तो ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए तो हम सेक्शन 12 बोल सकते हैं। फिर अगली परिभाषा में आती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा के बारे में दिया है। सो उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमको थोड़ा सा यहाँ अंदर समझना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन इन दोनों के कार्य और दोनों की मतलब नियुक्ति का बात अगर करें हम अपॉइंटमेंट का, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर होते हैं। तो इसका उत्तर ये रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब इसमें एक जो कलेक्टर वाला जो फंक्शन आता है, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों में उससे विभिन्न नामों से भी बुलाया जाता है। किसी डिप्टी कमिश्नर भी कहीं कहीं कहते हैं और कहीं कर कलेक्टर कहते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, कहीं डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं। इस टाइप का अलग अलग जगह है। लेकिन अगर हम माइंस एक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है और इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो फंक्शंस है वो मोस्टली है लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना, कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि माइंस में कभी कभी अनरेस्ट हो सकती है, किसी भी प्रकार का तनाव आ सकता है, तो उस समय में उस परिस्थिति की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है, टेंशन आ सकती है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसीलिए हम जो भी हमारे रिटर्न्स वगैरह होते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसकी भी सूचना हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देनी होती है। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे बड़ी अधिकारी होती है, सबसे बड़ी अधिकारी होता है उस ज़िले में सारी चीज़ों के बारे में। और आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है, उन सभी से ये उच्च पदस्थ माने जाते हैं, उन सब से ऊपर होते हैं ये। तो इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। अब और एक महत्वपूर्ण है कि पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस। तो हमारे मन में आ सकता है कि पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस की परिभाषा से हमको क्या करना है। आपको इसलिए करना है क्योंकि जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको किसकी सुरक्षा करनी है, द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड इन माइंस। तो कौन पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस है, तो उसका क्लियर रूप से जो परिभाषा दी हुई है उस परिभाषा को हमें समझना होगा। फिर हम एक उदाहरण भी लेंगे, तो आपको उदाहरण का उत्तर देने के लिए अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए तो आप बहुत अच्छी तरह उसका जवाब सटीक दे पाएंगे। अब इसमें क्लियर शब्दों में लिखा है कि मैनेजर इज़ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, मतलब माइन मैनेजर भी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन आता है। और वो सभी लोग जिन्हें ओनर, एजेंट अथवा मैनेजर द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। एंड मीन्स मैनेजर इज ऑल्सो ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, ऑल दोज पर्सन्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखी है, हु वर्क्स विद द नॉलेज ऑफ द मैनेजर वेदर फॉर वेजेस और नॉट, चाहे उसको उस कार्य के लिए माइन मैनेजर या मैनेजमेंट द्वारा या किसी के द्वारा वेजेस दिए जा रहे हो या न जा रहे हो, लेकिन उस मैनेजर को मालूम है कि ये व्यक्ति हमारी माइंस में कार्य कर रहा है। अब इसमें ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन उस समय में आती है कई बार
the mine owners and people over there, they purchase big machines from the original equipment manufacturer, and there is an agreement that for 1 year, 2 year, 3 year, entire maintenance and repairs work that will be conducted by the original equipment manufacturer. Now this OEM, he sends his engineer, he sends his fitter, he sends his mechanic to the mines for that work. Now since already we have purchased a machine, so we are not going to pay for any services of the mechanic or engineer, etc. And even if he is paid, so he will not be paid by the owner, agent or manager. But since he is called by the manager for repairs work, and he is instructed to visit the mine for repairing the equipment, so by definition he becomes a person employed in mines. For what purpose? For what purpose the act has been enacted, or for what for these provisions are? For the safety, health and welfare of persons employed in mines. So for the period, जितनी अवधि के लिए वो व्यक्ति आपके माइंस में जाकर के कार्य कर रहा है, उतनी अवधि तक उसकी सुरक्षा, उसकी स्वास्थ्य और उसका कल्याण देखने की जिम्मेदारी मैनेजर की है, इसलिए उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। अब महत्व की बात है, ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाएगा और वो मैनेजर के नॉलेज में है इसलिए वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। उसमें भी उन्होंने उसकी कंडीशन डाली है। क्या शर्त है उसमें? हु वर्क्स इन एनी माइनिंग ऑपरेशन, खनन से रिलेटेड कार्य में कार्य करता है, इंक्लूडिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल अप टू द पॉइंट ऑफ डिस्पैच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एट मेनी माइंस द ओर इज प्रोड्यूस्ड एट द माइन and it is dispatched up to the siding. So the entire operation from the mine to the siding is done by that person. So will we consider that person to be employed in the mine? This comes a question. So by definition, yes, he is a person employed in mine because he is engaged in handling and transport of mineral up to the point of dispatch. In Goa mines of iron ore mines of the Goa, the iron ore is transported up to the jetty. It is transported through the rivers and through the sea and etc. So the point of dispatch is over there. So that person is certainly, as per definition, he is employed in a mine. Of course, if you want to have exemption, so there is always a provision and there is always a but that is a different issue. Unless exempted, he comes under the purview of persons employed in the mine. And again they have mentioned one more provision, and that is dispatch and gathering sand and transport thereof. Now at many places what they do is, while coming back, while returning therefrom, they are carrying the sand also, or in particular some vehicles, some trucks are sent to the river bed for bringing sand to the mines for sand filling, etc., sand stowing, etc. So that operation has already been also been included, and those persons engaged in that work, they are considered as persons employed in the mines. So उसमें जो बोला है ना, एक concomitant means जो ancillary सहवर्ती related mining से related गतिविधियाँ होती हैं, then उसमें और एक mentioned है person employed in mines के बारे में, और एक क्या लिखा है, who works in operations or services related to development of the mine. We have a concept now, MDO, mine developer cum operator. So development of the mine is being done, whosoever person has been engaged in that, so he will be termed as person employed in the mine. Then plant construction but excluding. Now we know in many mines within the mining boundary there is a plant, there is a processing plant, crushing plant, screening plant, etc. So if some construction work is going on, some structure is being erected over there, so that comes under the plant construction. So that will definitely, persons engaged there will be considered as persons employed in mines, but excluding construction of building, road, wells and any building work not directly connected with any existing or future mining operations. It could be there that if some public road is passing through the mine boundary, and in that public road they are having some toll booth or something from the government which has nothing to do with the mining as such, so in that case those persons will not be considered as employed in mines. That exemption they have given.
Then in operating, servicing, maintaining or repairing any part or any machinery used in or about the mine, because at times some of the, as I give you the example of the person from the OEM, so we have come across a situation wherein the mechanic or engineer of the OEM, he went to the mine, and while he was repairing the machine, he met with an accident. Some accident took place, and he lost his life and also. So during that inquiry, it was pointed out that it was sole responsibility of the manager, and manager has to now give the reply that what precautions you had taken so that his life could have been protected, or where the lapse was there. So from that point of view, that person was considered as the person employed in the mine, and it was the manager's responsibility to protect him or offer safety and all those things to him, safety cover to him. So this way, this definition becomes important. Then loading and dispatch of minerals. Now this is also one of the important. Mine siding is there, and in that mine siding, contractor workers are working for the loading and dispatch of the mineral. So as per the definition, those persons are also considered to be person employed in mine. So why this definition is important? This definition is important so that whatever the benefits of the person employed in mines are there, whether it is for working hours, whether it is for wages, whether it is for minimum wages, or whether it is for any other facilities, all those things are applicable to these persons, and that's why this definition becomes important. And those persons in any office of the mine, they are also considered as person employed in the mine. Then one more thing they have mentioned, this we should clearly understand. In any welfare means canteen, etc. Health means medical, doctor and survey and etc. सैनिटरी और कॉन्जर्वेंसी सर्विसेज. सैनिटरी तो आप जानते ही हैं कि अगर स्वच्छता की, साफ़ सफाई के काम में कोई आ रहा है, स्वीपर आ रहा है या अन्य कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो भी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस है. अगर माइंस में आ रहा है और माइंस की रेस्ट शेल्टर की लेटरिन, तो वेरी मच कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन हो जाता है वो, मे बी इनडायरेक्टली. देन कॉन्जर्वेंसी सर्विसेज में कई बार पंप ऑपरेटर आपको पानी देने के लिए आता हो, या पर्यावरण के लिए आपने पेड़ लगाए हों, पेड़ों को पानी देने के लिए कोई आता हो, तो वो बिल्कुल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दृष्टि से आपके माइंड से रिलेटेड ही है कार्य. तो इस टाइप का आपको अपनी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन की व्याख्या को बहुत अच्छी तरह समझना होगा. एंड देन अनदर थिंग इज़ डेफिनेटली जो भी चीज़ें, जैसे हमको डस्ट से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो अगर समझ लो कोई ऐसा पंप ऑपरेटर आ रहा है जो आपका स्प्रिंकलर चला रहा है, तो आपको तो एक्ट के अंतर्गत बोला ही गया है कि माइन मैनेजर ये ध्यान रखेगा कि कहीं पर भी एयरबॉर्न डस्ट ना हो. सो डस्ट सप्रेशन के लिए मतलब एक्ट के थ्रू ही वो व्यक्ति आया है. सो ये क्या बोलते हैं कि रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट. एंड अगेन वन मोर थिंग दे हैव एडेड, at times the security of the mine is entrusted with other agencies. Now we have also come across certain situations wherein we found that at some of the sensitive areas the security of the mine has been entrusted to the CISF. Now these CISF men, they used to cordon off the area and patrol the area during blasting operation. Now when these people are entering the danger zone, when they are there to do protection or security during the blasting hours, so they need to be taken under the purview of persons employed in mines, because every person employed in mine must go basic vocational training. So this definition assumes importance. It is not only from the point of view of his wages and minimum wages and salary and other facilities. He must be trained also. He must be told what are the safety precautions that are to be taken when you visit a mine. So this way, watch and ward, those who are engaged in watch and ward, so they are whether paid by the owner, agent, manager or not, they also come under the purview of person employed in mines within the premises of the mine, excluding residential area. I agree. If it is a security guard in the residential quarters which has nothing to do with the mining operation and it is away from the mine area, etc., so that won't be considered. Then in this definition, one more thing they have added is, in any kind of work whatsoever which is preparatory और incidental to और connected with mining operations. तो ये हमें परिभाषा बहुत अच्छे से समझना जरूरी है जो इसमें लिखा है कि incidental to और connected with. तो इसमें एक माइन मैनेजर के लिए ये परिभाषा जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन के प्रावधान जो है
वो खान में नियोजित व्यक्तियों को लागू होते हैं, पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस को लागू होते हैं। तो उन सारे पर्सन्स की उस दृष्टि से चयन करने के लिए और उनको सारी सुविधाएं या सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं, सूचनाएं हैं, ट्रेनिंग है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, विशेष रूप से बिकॉज पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस की कैटेगरी में आ गया तो उसका स्वास्थ्य भी सही होना, उसको आँखों से अगर दिख नहीं रहा, उसको कानों से सुनाई नहीं आ रहा, तो वो व्यक्ति तो चपेट में आ सकता है, उसे डंपर का हॉर्न ही सुनाई नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन, ऐसा अगर आ सकता है। नाउ आपको बड़े केयरफुली ये देखना चाहिए कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, कौन इसमें के पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन? कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वे ब्रिज एट द माइन। नाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए वे ब्रिज, क्या बोलते हैं उसको, काटा घर बोलते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है तो क्या वो माइन से रिलेटेड कार्य है, माइनिंग से रिलेटेड कार्य है? वेरी मच रिलेटेड कार्य है। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंगेज इन पेंटिंग द ओर बेनिफिशिएंट प्लांट बिल्डिंग एट द माइन, तो अगर पेंटिंग कर रहे हैं आप प्लांट की जो आपके माइन एरिया में है तो वेरी मच माइन से रिलेटेड कार्य। पंप ऑपरेटर सप्लाइंग वाटर टू द एडजेसेंट विलेज फ्रॉम ए वेल सिचुएटेड एट द माइन, खदान में वो वेल है और उसका पानी कोई पंप ऑपरेटर होगा, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर का हो या नगर पालिका का हो, वो पंप ऑपरेटर पड़ोस के विलेज के लिए पानी देने के लिए वो आ रहा है, तो क्या उसे पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन बोलेंगे? फिर BMD वैन ऑपरेटर, ये भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। वेयर एवर द SMS और SME ब्लास्टिंग इज डन, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू सम एक्सप्लोजिव some agency and they are supplying the through the BMD van. So BMD van operator transporting SMS in bulk to the blast site. So they are asking इसमें से कौन कौन एम्प्लॉय एंड ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या समझते हैं इसमें? कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एंगेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वे ब्रिज बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड है। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंगेज इन पेंटिंग दी ओर बेनिफिशिएशन प्लांट, इसे भी बोल सकते हैं। अब पंप ऑपरेटर सप्लाइंग वाटर टू द एडजेसेंट विलेज, ये थोड़ा सा हमको माइनिंग से हटके लगता है, तो इसके आंसर में हम ले सकते हैं कि ही इज़ नॉट ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन। बाकी BMD वैन जो दे रहा है वेरी मच रिलेटेड विथ ये। देन अभी और एक एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में ये पूछा गया है कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन। ओके, वो जानना चाहते हैं कि पर्सन, एक जस्ट एग्जांपल है, इस टाइप का प्रश्न अगर आता है। इंजीनियर फ्रॉम द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अटेंडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूली सप्लाइड HMM एट द माइन। नाउ अगर हम परिभाषा में देखें तो परिभाषा में उन्होंने दिया है कि सर्विसेज ऑल्सो related to repairing and all maintenance of machine etc, they are all, those are persons employed in mine, whether for wages or not and with the knowledge of the manager। तो उसका हमको इसमें मापदंड लगाने पड़ेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि OEM का पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस में आता है, तो उसको बिल्कुल सारी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ड्राइवर ऑफ हायर्ड बस कैरिंग द एम्प्लॉयज़ टू द माइन, बहुत जगह ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ को कैरी करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की मतलब बस किराए से लेते हैं, तो क्या उस ड्राइवर को हम एम्प्लॉयड इन माइंस बोलेंगे, ये पूछा गया है। फिर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंगेज्ड फॉर 1 वीक, एक ही हफ्ते के लिए, इन रिमूविंग द बुशेस इन एंड अराउंड द मैगजीन, ये भी कार्य होता है। मैगजीन के अगल बगल में झाड़ी अगर हो गई और कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर आपने 1 हफ्ते के लिए लगाए हैं, तो क्या वो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस है? एम्प्लॉय ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कलेक्टिंग वाटर सैंपल फ्रॉम द प्लांट ड्रेन एट द माइन, और आखिरी में बोला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर लिखते समय हमको ये समझ जाना होगा कि इसमें से कौन कौन वर्कर्स हैं जिसे हम पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइन बोल सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार देखें तो पहला वाला तो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन है, दूसरा वाला भी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन है क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड कार्य है, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर 1 वीक और रिमूविंग द बुशेस। आप तो देखे ही हैं माइंस रूल्स में क्या बोला है, आपको टेम्पररी काम रहे कुछ भी रहे, अगर वो माइंस में जाता है तो उसको आपको मेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन पूरी करवानी है, और चाहे वो 1 दिन के लिए जाए 1 घंटे के लिए जाए, खतरनाक जगह तो जा ही रहा है। और मैगजीन जो है वो वेरी मच हमारी माइन है, तो माइन और माइन से जुड़ा कार्य है, तो माइन से जुड़े कार्य में रहने से वो भी एम्प्लॉयड इन माइन आएगा। फिर एम्प्लॉय ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कलेक्टिंग वाटर सैंपल, ऐसा भी कभी कभी होता है, जो वाटर डिस्चार्ज है पंप, वहाँ से सैंपल लेने के लिए PUC का आदमी आता है, PCB का आदमी आता है, तो उस आदमी को भी हम इस डेफिनेशन में बोलेंगे कि यस दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड विथ द वर्किंग ऑफ द माइन।
बट एंड ऑल ऑफ दिस, सो इसमें हम ऑल ऑफ दिस के दायरे में इसको ले सकते हैं, सिंस इसमें हमें इतना ही देखना है कि उसकी हमको सुरक्षा के दृष्टि से हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, एंड दैट पर्सन हैज़ द ड्यूटी टू follow all the responsibilities and duties of person employed in mines. So he has to follow the discipline, he has to wear helmet, he has to obey the fencing. If there is fencing, he should not pass, and all those criteria are there. So this way it becomes very, very important.